So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 5 of our topic analytic functions and CR equations, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today we are going to solve the PYQs of NET and GATE exams. Okay, so now let's see the question number 1. This question has been asked in 2012 NET exam, and in this question it is given that let f be an entire function. So it is given to me that f is a entire function and the imaginary part of f is equal or greater than 0. For example, let's suppose we have f, it can be written as u plus iota v, और मुझे यहाँ पे given है that v is equal or greater than 0. So definitely I can write here that v should be equal or less than any number k, where this k should be equal or greater than 0. So from here I can write down that v is a bounded function. So if v is bounded, which implies that कि हमने पहले ही लेक्चर्स में देखा है कि अगर हमारे पास v और u में कोई एक भी बाउंडेड हो जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो फंक्शन होगा f, इट इज अ basically constant function. From here we can say that. So because it is a entire function, हमें यहाँ पे पहले ही given था it is a entire function, and if f is entire and any one of u and v are bounded, then f will be the constant function. So see the options. Option number 2 is my correct option because f is constant. Now tell me, if f is constant, so what I can write here. Let's suppose मैंने अगर यहाँ पे लिया f of z, हमारे पास 2 आ गया. 2 is a constant number, so 2 can be written as 2 plus iota times 0. So from here, real part of this f will be the constant function, and similarly the imaginary part is also constant. So option number A देखिए, option number A में कह रहा है real part of f is constant. Yes, it is also true. What about option number 3? Option number 3 में कह रहा है कि f हमारे पास identically 0 होगा. See, f is equals to 0 is a constant function, but अगर मैंने यहाँ पे इसको identically 0 कह दिया, means f हमेशा 0 ही हो सकता है. So that is not true, because f तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. It is any constant number. So 3 is not right. What about option number 4? 4 में कह रहा है कि f dash, अगर मैंने यहाँ पर f का dash निकाला तो हमारे पास 0 आ जाएगा. क्यों? Because f is a constant function. f हमारे पास एक constant function था, तो उसका डेरिवेटिव करने पर डेफिनेटली मुझे 0 मिलने वाला है. और यहाँ मुझे कह रहा है कि f dash is a non-zero constant. It is a incorrect. So the correct option in this question are A and B are my correct answers in this question. Okay, now let's solve this question number 2. This question has been asked in 2018 NET exam, and it is given that let D be the open unit disk centered at 0 in C. Okay, so first of all मुझे यहाँ पे क्या given है, हम इसको draw कर लेते हैं. See, it is given to me that we have a D which is open unit disk centered at 0. So first of all, let's suppose मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक open unit disk बना लिया, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि this disk is basically D and it is centered at 0. Then we have a function f from D to C, यानी कि इस D से हमने एक f फंक्शन क्रिएट किया. कहाँ पर? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, जहां पर ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है एंड दिस एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो ये हमारे पास d है एंड दिस इज बेसिकली c. तो मैंने एक f फंक्शन लिया जो कि d से c पर डिफाइन हो रहा है. नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन. सो f be an analytic function, और f जो फंक्शन है, it is given to me that this function is analytic. Okay, now so it is given to me that if f is equals to u plus iota v, और f को मैं कैसे लिख सकता हूँ? f को मैं लिख सकता हूँ f is equals to u plus iota v, and this is a analytic function. Then so if f of z is equals to summation of this is a power series of f, then f is constant. Okay, तो यानी कि अगर मुझसे ये बोला जा रहा है कि f हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक फंक्शन है, एंड f को मैं पावर सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. अगर मैं f को पावर सीरीज के फॉर्म में लिख सकता हूँ, देन हमारे पास f कांस्टेंट कब होगा? तो हमें इसके लिए ट्रिक मालूम है. क्या होता है ट्रिक? लेट्स सी द ट्रिक फर्स्ट. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f है एंड मैंने उस फंक्शन का अगर
बार ले लिया, मीन्स f conjugate. So if f and f conjugate are analytic, अगर f और f conjugate बेसिकली एनालिटिक होते हैं, which implies that f of z is constant, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि जब कभी भी f और f conjugate हमारे पास एनालिटिक होगा तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है. और यहाँ पे हमें गिवन ही है कि जो हमारा फंक्शन f है वो एनालिटिक है. और अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 देखूं तो 1 में कह रहा है कि f डैश इज एनालिटिक. तो अगर f एनालिटिक गिवन है, f डैश मैंने एनालिटिक सपोज कर लिया, then f will be the constant function. So yes, option number 1 is true. Now what about option number 2? Let me erase this part. Okay, now let's see option number 2. Option number 2 में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें रियल पार्ट में 1/2 गिवन है, इज इक्वल और ग्रेटर देन u of z for all z belongs to d. So हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा फंक्शन मींस अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. लेट्स सी. तो हमने अगर देखें तो ये हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये हमें एक तरह से बता रहा है बाय मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल. अब मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल क्या होती है? लेट्स सी. प्रिंसिपल, ओके, सो इट इज द मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल. मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लाइक u of a is always equal or greater than u of z, where this a, if it belongs to the domain, which implies that कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा. मींस एक्चुअली ये फंक्शन के लिए नहीं बोलता, ये बोलता है कि u इज कांस्टेंट. चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ. बेसिकली दिस सेज दैट कि अगर हमारे पास देखिए फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, हमारे पास एक डोमेन d था लाइक दिस, हमारे पास एक डोमेन d था और इस डोमेन में अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि जो हमारे पास दिस ये जो a आ रहा है अगर ये a इसी डोमेन में एग्जिस्ट करता है देन विच एम्प्लाइज दैट कि जो u ऑफ z है मींस एक्चुअली इट इज जो हमारे पास फंक्शन u है, दिस u इज अ कांस्टेंट फंक्शन. और अगर u कांस्टेंट है विच एम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ z होगा इट इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन. सो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में क्या करना है, हमें बस देखना है कि जो हमारे पास ये 1/2 आ रहा है क्या ये हमारे डिस्क में होगा कि नहीं, इट इज इन द ओपन डिस्क और नॉट. तो हमें ओपन डिस्क क्या गिवन था? ओपन डिस्क हमें गिवन है इट इज अ यूनिट ओपन डिस्क. if it is a unit open disk then clearly ये पॉइंट हमारे पास 1 होगा and this point will be -1. so अगर यहाँ पे मैं देखूँ 1/2, क्या 1/2 हमारे पास ओपन डिस्क में होगा? क्लियरली हमारे पास कुछ यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ रहा होगा. सो विच एम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास फंक्शन u है वो कांस्टेंट होगा एंड हेंस वी कैन से दैट f ऑफ z इज ऑल्सो कांस्टेंट. और बेसिकली मॉडुलस मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल हो गया, हमारे पास मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल, ये सब मैं आगे आप लोगों को लेक्चर्स में कराऊंगा. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ गिवन था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया. सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? लेट मी इरेज दिस पार्ट. ओके, सी हमें अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में. सी देखिए सबसे पहले मुझे गिवन है कि an इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ an in this power series? In this power series an means the nth derivative of the function at 0 divided by n factorial. तो अगर यहाँ पे मैं इसे निकालता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर f का फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, फिर सपोज मैंने f को कोई फंक्शन मान लिया पहले विच इज अ एनालिटिक फंक्शन. f शुड बी द एनालिटिक फंक्शन. तो मैं मान लेता हूँ f को sin z एंड sin z इज अ एनालिटिक फंक्शन. तो अगर मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin z विल बी cos z. Now the second derivative will be minus sin z. Third derivative will be minus cos z. Fourth derivative will be minus sin z. Fifth derivative will be minus cos z and so on. तो अगर मैंने इन functions के through a1 निकाला, what is a1? Basically a1 will be, okay, so the a1
will be here from here. a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 is f का फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन 1 फैक्टोरियल, और जब मैंने cos z में 0 रखा, so cos of 0 becomes 1, so it will be 1, or you can say 1 by 1 factorial. Then this value gives me a2, और अगर मैंने यहाँ 0 रखा, this becomes 0. This value gives me a3, and a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, it is actually -1 divided by 3 factorial. a4 हमारे पास क्या हो जाएगा, a4 will be 0 because sin 0 will be 0. a5 हमारे पास क्या हो जाएगा, it is -1 by 5 factorial and so on. इस तरह से हम चीजों को निकाल सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन सब n की वैल्यूज जिस पर an की वैल्यू 0 हो जाती है. तो देखिए हमें 0 कहाँ कहाँ मिल रहा है, a2 is equals to 0, a4 is equals to 0. तो यानी कि जितने भी इवन टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी इवन टर्म्स आ रहे हैं उनके लिए हमें 0 मिल रहा है. सो आई कैन राइट डाउन हियर कि हमारे पास सेट क्या बन जाएगा. हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, a2, a4, a6, a8 एंड अप टू सो ऑन. तो क्या ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट है? क्लियरली यस, इट इज अ इनफाइनाइट सेट. और यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि द सेट, ये जो हमारे पास सेट होगा ये इनफाइनाइट होना चाहिए. यस, इट इज अ इनफाइनाइट. बट हमने जो फंक्शन लिया था, क्या ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन. बट हमें क्या चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हमें कांस्टेंट फंक्शन के लिए चीजों को निकालना है. बट हमने क्या देखा, हमने तो नॉन कांस्टेंट के लिए निकाल दिया, जो कि हमारे पास ट्रू आ रहा है. सो दिस ऑप्शन इज incorrect. Okay, so now what about this option number 4? So let me erase this part. Now we will see option number 4 as well. Okay, so option number 4 में हमसे क्या गिवन है, देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में एक फंक्शन इंटीग्रेशन गिवन है. इट इज इंटीग्रेशन f of z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू 0. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है. बेसिकली ये हमें क्या गिवन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फुल प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिया है. तो जो उसको नहीं देखा है, आप अगर वो वीडियोस देख के आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हो जाएगा. देखिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बेसिकली ए इज अवर पोल एंड इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 2. तो मैं यहाँ पे बाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आई कैन राइट डाउन हियर, इट इज एक्चुअली 2 पाई आयोटा टाइम्स बेसिकली डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू f का first derivative at a is equals to 0. So from here what we get f dash of a is equals to 0. So from here basically f of z हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव 0 है which means f of z is a constant function. So yes, this function is also true because ये function ये imply करता है कि जो function हमें मिल रहा है f वो एक constant function है. So the correct options in this question are basically a, B and D are my right answers in this question. Okay. Now let's solve this question number 3. Basically in this question it is given that let P be positive integer. Okay. So basically P is a positive integer. So let's suppose कि मैंने P को क्या मान लिया, मैंने P को मान लिया it is 1 because it is a positive integer. Then it is given that consider the closed curve z is equals to e पर iota t where t basically 0 से हमारे पास 2 पाई तक जा रहा है, यानी कि ये हमें एक यूनिट सर्कल गिवन है. इट इज अ यूनिट सर्कल एंड लेट f be a holomorphic function basically और f has 0 only. तो जब हमें ये बोला जा रहा है basically f has a 0 only at z0, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, okay, so I can write down here that f has only 0, उसके पास सिर्फ 0 है और किस पॉइंट पर, एट z0. सो आई कैन राइट डाउन हियर कि हमारे पास f कैसा होना चाहिए, f ऑफ z शुड बी z माइनस z0, क्योंकि जब मैं इसको 0 पुट करूंगा एट z0 तो मुझे 0 मिल जाता है, मीन्स z0 इज अ 0 फॉर अवर फंक्शन. सो आई कैन क्रिएट दिस फंक्शन लाइक दिस बिकॉज f0 इज अ 0 फॉर मी. नाउ आगे क्या बोल रहा है, फिर मुझसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एंड इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी q, यानी कि जो हमारे पास 0 की मल्टीप्लिसिटी वो q गिवन है. तो मैं यहाँ पे पावर q लगा देता हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि 0 q टाइम्स रिपीट हो रहा है. नाउ देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन. सी इन दिस इंटीग्रेशन व्हाट कैन वी राइट हियर,
सो अगर मैं इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करूँ, दिस बिकम्स 1/2 pi i इंटीग्रेशन. नाउ एफ डैश जेड क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड विल बी q टाइम्स, it is z minus z naught power q minus 1. So it can be written as q times z minus z naught की power q divided by z minus z naught. और मुझे चाहिए एफ जेड बाई जेड, तो अगर मैं एफ डैश में से एफ को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेट्स सी. दिस बिकम्स q टाइम्स z माइनस z नॉट की पावर q डिवाइडेड बाई z माइनस z नॉट, and this is divided by z minus z naught की power q. So this term will be cancelled out. So from here we get q upon z minus z naught. Okay, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया? This becomes q divided by z minus z naught and this term is multiplied by z power q. It is z power p basically. तो मैं इसको z power p से multiply कर देता हूँ into dz. It is basically given to me. ओके तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, q इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन राइट डाउन हियर q डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इट इज z पावर p डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट इनटू dz. एंड डेफिनेटली फ्रॉम हियर इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. अगेन ये हमने सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो z नॉट क्या है यहाँ पे? z नॉट हमारे पास ऐसा सिंगुलैरिटी काम करेगा, और क्योंकि z नॉट ऐसा सिंगुलैरिटी काम कर रहा है और इसकी पोल मींस इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर हमारे पास 1 है. सो बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्लियरली वी कैन से दैट q डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा, तो एज इट इज है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन बाय दिस फॉर्मूला? सो दिस बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स द फंक्शनल वैल्यू at z naught. And what is the functional value here? This z power p will work as a function. This z power p को मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा? एक फंक्शन मान लूंगा f of z is equals to z power p. So this becomes 2 pi iota से 2 pi iota cancel out. It is q multiplied by, अब मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा, so it is z naught की power p, which means q times z naught की power p is the right answer. Now let's check the options. So it is z naught की power q is incorrect, p की power q incorrect, z naught incorrect. Yes, it is q times z naught की power p. So correct option in this question is A is my correct answer in this question. Okay. So now let's solve this question. This question has been asked in 2023 NET exam, and in this question it is given that let f be an entire function that satisfies this property. Means हमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने को बोला जा रहा है. इट इज mod f of z is equal or less than e power y for all z is equals to x plus iota y where x y हमारे पास रियल नंबर्स हैं. देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में. सी ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या गिवन है? इट इज गिवन टू मी दैट जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ z इट इज c टाइम्स e पावर माइनस आयोटा z. तो अगर मैं मॉडुलस वैल्यू f का लूँ तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स c टाइम्स e पावर माइनस आयोटा z. सो जैसे मैंने z की वैल्यू रखी, सो दिस बिकम्स c टाइम्स e पावर माइनस आयोटा एंड दिस इज x प्लस आयोटा y. So it becomes c times e power minus iota x and it is minus iota square which is plus y. So this can be written as c times e power minus iota x into e power y. So clearly we can see here it is mod c into e power minus iota x का mod into e power y का mod. And क्योंकि यहाँ पर iota का mod है, so this value becomes 1. So what about this value? ये value हमें क्या मिल जाएगी? This becomes mod c into e power y का mod. और ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है जो mod c है वो इक्वल और लेस देन 1 होता है. So this value can be written as it is equal or less than 1 times e power y. So clearly it is equal or less than mod of e power y. और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारे पास mod of f of z की वैल्यू. So yes, this property basically satisfies. So because this property satisfies for this function, so option number A is my correct option. Now what about option number B?
So let me erase this part. Now we will check about option number B as well. So option number B में देखिए मुझे क्या गिवन है. मुझे एक फंक्शन गिवन है f of z is equals to c times e power iota z. तो अगर मैं मॉडुलस वैल्यू अपने f की निकालूंगा, so this becomes mod of c times e power iota, और z की वैल्यू रख देता हूँ, it is x plus iota y. So from here it is mod of c times e power iota x and plus iota square is minus 1, so it is minus y, and hence it becomes mod of c into e power iota x with modulus value mod of e power minus y. This value becomes 1, so it is mod c times e power minus y. बेसिकली अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए e की पावर पॉजिटिव y, बट इट इज नेगेटिव y, सो क्लियरली इट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज माय इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? देखिए ऑप्शन नंबर सी को मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं. हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू e पावर माइनस सी आयोटा z. तो अगर मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू लूँ, mod of fz, दिस बिकम्स e पावर माइनस आयोटा and it is x plus iota y. So from here I can write down it is e power minus c iota x and minus iota square, which is plus, so it is plus y. So from here what can we see? अच्छा यहाँ पे देखिए c भी मल्टीप्लाई हो रहा है. Okay, so here it will be plus cy. So from here it is e power minus c iota x, because यहाँ पे iota है, into e power cy. Due to this iota this value becomes 1, so it is e power cy. बट अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, ओनली y, बट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, cy, so it is also incorrect. So the question number means C option is also incorrect. What about option number 4? Let me check here कि हमारे पास जो फंक्शन है अगर मैं देखूं तो इसकी अगर मॉडुलस वैल्यू में निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज e पावर c iota x plus iota y. So from here this becomes e power c iota x into e power c iota square means minus and it is y. जैसे मैंने यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू लगाया आयोटा की वजह से ये हो गया 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट e पावर माइनस c iota y, but we need only y, and here basically we are getting minus c, so it is also incorrect. So the B option is also incorrect. So the correct option is only 1 is my correct option. Means correct option is A in this question. Okay. Now let's see the question number 5. This question has been asked in 2017 NET exam, and in this question it is given that let f be an entire function. Now it is given to me that f is an entire function. Consider a set A जिसमें ऐसे z आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कि अगर मैं उनका nth डेरिवेटिव करता हूं देन मुझे 0 मिलना चाहिए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n. ओके, सो बेसिकली n हमें क्या गिवन है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो क्यों ना मैं यहाँ पे n को कुछ मान लेता हूँ. सो लेट्स सपोज मैंने क्या मान लिया, n को मैंने 2 मान लिया, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगा कि हम f का 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं एट z, तो मुझे 0 मिलना चाहिए. नाउ द ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले हम बात करते हैं. इफ a इज इक्वल्स टू c, अगर जो हमारा सेट है वो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही हो जाता है, मीन्स मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a को रख सकता हूं अगर, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा. सो लेट्स सॉल्व दिस केस. अगर मैं इसको सॉल्व करूं f डबल डैश ऑफ z, तो एक मुझे क्या मिल जाएगा, f डैश z मीन्स बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर मैं फिर से एक बार इंटीग्रेट करूं तो हमारे पास f ऑफ z क्या हो जाता है, f of z becomes basically az plus b, and this is nothing but a polynomial. Basically it is a polynomial f of z. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ that जो हमें f मिला वो एक polynomial है, और इस polynomial में जो z होता है वो हमारे पास पूरे पूरे c में से मैं कोई भी पॉइंट रख सकता हूँ, because polynomial is an entire function, it is a valid defined function for any z. So clearly I can take a to be c here. और अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो अगर मैंने a को पूरा पूरा c लिया then f is a polynomial, which is also true. So yes, option number A is correct. If a is equals to c, then f is a constant function. No, f is a polynomial, it is not a constant. 2 is incorrect. If a is uncountable. Okay, so now let's solve this problem. Basically option number C. Option number C में देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि अगर मैंने क्या किया, C, option number C,
लेट ए इज अनकाउंटेबल. सो लेट सपोज कि मैंने ए को क्या मान लिया, अनकाउंटेबल मान लिया. बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकाउंटेबल? अगर मैं सेट ए को लिखूं तो सेट ए में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे सच दैट कि जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव किया एट z तो मुझे जीरो मिल जाना चाहिए. ठीक, दिस इज द केस. और ये सेट हमें क्या गिवन है, इट इज अनकाउंटेबल. ओके, यस. और हमें क्या चाहिए, देखिए हमें कंडीशन क्या गिवन है, एक्चुअली हमें कंडीशन गिवन है, हमें f के ऊपर कंडीशन लगा ली है, क्या f हमारे पास पॉलिनोमियल होगा. तो अगर ये पूरा सेट अनकाउंटेबल है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लेट मी राइट इट अगेन, कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं सच दैट कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ एट z तो मुझे जीरो मिल रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो जीरो है यहाँ पर, क्या ये हमारे पास z जो है बिहेव्स, बेसिकली z बिहेव्स एज जीरो ऑफ f डबल डैश. अगर मैं f डबल डैश को एक फंक्शन मानूं तो f डबल डैश के लिए जो z है वो हमारे पास जीरो की तरह काम कर रहा है. सो फ्रॉम हियर हम यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं. बेसिकली आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, आइडेंटिटी theorem. What is the identity theorem? Basically, identity theorem says that if we have any set, like अगर हमारे पास कोई set है z belongs to C such that g of z is equals to 0, where z is the zeros of the function g. अगर हमारे पास ऐसा कोई केस होगा तो उस केस में बेसिकली दिस एम्प्लाइज दैट कि g of z आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा फॉर ऑल z belongs to C. ये हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम होता है. सो अगर मैं यहाँ देखूं, इफ z is the basically if z is zeros of f double dash f, so from here what I can write here, that by identity theorem, identity theorem by identity theorem what we can say, basically identity theorem भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बस आप लोगों को मैं बिकॉज क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसलिए मैं करा देता हूँ, अदरवाइज आगे हम लोग इसके डिटेल लेक्चर्स देखेंगे. सो व्हाट इज आइडेंटिटी थ्योरम? आइडेंटिटी थ्योरम को बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई सेट है जिसमें जो z है वो zeros of g है, then g will be identically zero. So from here what can I write, which implies that f double dash will be identically zero, and this implies that कि f dash of z जो होगा वो एक constant होगा, and this implies that f of z will be az plus b, and az plus b is simply a polynomial. Since it is a polynomial, so see the options. If a is uncountable, then f is a polynomial, it is correct. And if a is uncountable, then f is constant function, it is incorrect. So the correct options in this question are A and C are my correct answer in this question. Okay. So now let's solve question number 6. Basically, this question has been asked in 2013 NET exam. It is a very good question. See, मुझे क्या given है? Let P and Q be two non-zero complex polynomials. Okay. So हमें क्या given है कि जो भी P of Z होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, एंड Q of Z विल ऑल्सो बी नॉन जीरो. मैं जीरो नहीं ले सकता, और ये सब हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं. देन PZ इंटू QZ का बार, इट इज अ बार ओवर Q, इज एनालिटिक if and only if the first option is here, it is a P of Z is constant. Okay, so सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं. तो यहाँ पे बिकॉज इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन बोथ साइड से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमें इस तरह से सोचना है. तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग दैट पी ऑफ जेड इज कांस्टेंट. सो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने पी ऑफ जेड को एक कांस्टेंट नंबर मान लिया, विच मीन्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल. तो अगर मैंने पी ऑफ जेड को एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना विच इज 1, और क्यू ऑफ जेड को मैं क्या मान लेता हूँ, लेट्स सपोज क्यू ऑफ जेड को हमने क्या मान लिया, इट इज अ suppose it is z which is also a complex polynomial non-zero. So from here what can I write, I can write that p into q bar क्या आ जाएगा, it is 1 into z bar which means we get z bar. क्या z bar हमारे पास जो फंक्शन आया है p into q bar, क्या ये हमारे पास एनालिटिक होता है, it is not analytic. अब आपका क्वेश्चन होगा सर कैसे
आखिरकार नॉट एनालिटिक आ गया, मुझे देख के पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन f अगर है वो एनालिटिक होगा इफ डेल एफ ओवर डेल जेड बार हमारे पास 0 आ जाए। और अगर इस केस में मैं डेल ओवर डेल जेड बार निकालता हूँ जेड बार का, तो ये हमारे पास 1 आएगा विच इज नॉन जीरो, सो विच मीन्स इट इज अ not analytic function. So because it is not analytic, so option number A is my incorrect option. Now what about option number B? Now let's solve this second option. See, option number B में हमसे क्या बोल रहा है? It is saying that pz into qz is constant. यानी कि अगर let's suppose कि मैंने क्या किया, हमें क्या given है, हमें because if and only की condition proof करनी है, तो हमें actually given है p into q bar is analytic if and only if p into q is constant. हमें इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है। सो लेट्स सपोज अगर मैंने क्या किया, अगर हमने p ऑफ z को मान लिया, सपोज इट इज z, और q ऑफ z को मैंने क्या मान लिया 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ p इंटू क्यू बार क्या आ जाएगा, इट इज z इंटू 1 बार विच इज z, और बिकॉज इट इज z देन क्लियरली बिकॉज del z ओवर del z बार हमारे पास क्या होता है 0, विच एम्प्लाइज दैट दिस इज अ एनालिटिक फंक्शन। बट अगर मैं वहीं पर p इंटू क्यू निकालूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस p इंटू क्यू विल बिकम्स z इंटू 1 विच इज z विच इज अ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियरली इट इज अ वेरी इजी, बिकॉज हमें क्या गिवन था, ये इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए p इंटू क्यू इज कांस्टेंट, बट हमें क्या मिल रहा है p इंटू क्यू इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? देखिए ऑप्शन नंबर सी को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, सो व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर q ऑफ z को कांस्टेंट मान लिया, लेट सपोज अवर q ऑफ z इज 1 और p ऑफ z को मैं मान लेता हूँ लेट सपोज z, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज एक्चुअली p इंटू क्यू बार, so z into 1 bar which is z, and clearly z is a analytic function, so yes it satisfies our condition also क्योंकि 1 हमारे पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, z भी is a नॉन जीरो पॉलिनोमियल, so option number 3 is my correct option. What about option number 4? option number 4 में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर मैंने p का कॉन्जुगेट लिया तो p को तो मैं z भी मान सकता हूँ, लेट्स सपोज p को मैंने z मान लिया एंड q को हमने 1 माना, so in this case p conjugate into z means q हमारे पास क्या हो जाएगा z bar into 1 which is a z bar, एंड क्या ये हमें एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है which is not constant function, ये तो यहीं से एलिमिनेट हो रहा है, so this option is also incorrect. So the correct option in this question is C is my correct answer. Okay, so basically these types of questions are very important. हमें ऐसे questions में सोचना होता है कि हम क्या इसका काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन किए, आप चाहते तो आप यहाँ पे z स्क्वायर ले सकते थे, 1 माइनस z ले सकते थे ना, कुछ भी ले सकते हैं, सो इट ऑल अपॉन यू दैट आप यहाँ पर कौन से काउंटर एग्जाम्पल का यूज कर पाते हैं। ओके, और ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑप्शन नंबर second question. This question has been asked in 2016 at exam, and in this question it is given that let f be an entire function. Okay, so it is given to me that जो हमारे पास function f है वो एक entire function है, and also it is given to me that it is u plus iota v. So f of z is equals to u plus iota v, and this is a basically analytic function, or you can say entire function. Okay, so this is a entire function. Now it is given to me that then f is constant if फर्स्ट ऑप्शन f हमारे पास कांस्टेंट कब होता है। चलिए अगर मान लीजिए कि डेफिनेटली कल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर हमारे पास मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ z है जो कि u प्लस आयोटा v जैसा है, अगर ये फंक्शन हमारे पास एंटायर हो जाता है प्लस बाउंडेड हो जाता है, which implies that basically this implies that f of z is constant, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है that f of z is equals to u plus iota v, हमें एंटायर तो गिवन ही है और हमें क्या गिवन है कि f of z मींस कांस्टेंट भी है,
यानी कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि f हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा, देन इट्स ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो इसमें मुझसे बोला जा रहा है कि जो u है हमारे पास, u इज बाउंडेड। अगर u बाउंडेड है तो ये क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z इज बाउंडेड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास u और v में से कोई एक भी बाउंडेड हो जाता है देन वी आर डन। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? दैट f of z is bounded. Since f of z is bounded and it is given that it is entire function also, so this implies that f of z is constant. So yes, option number A is my correct option. What about option number B? See, इसमें यहाँ पे given है कि v हमारे पास जो function है it is bounded. So if similarly in B also, क्योंकि v हमारे पास बाउंडेड है which implies that कि f of z बाउंडेड हो जाएगा, and because it is bounded plus analytic so it is a constant function. So option number B is also correct. Now let me erase this part. Okay, yes, now let's see option number C में हमसे क्या बोला रहा है। ऑप्शन नंबर सी में को अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे तो मुझसे बोला जा रहा है कि मुझे u प्लस वी फंक्शन के बारे में बताना है कि क्या ये हमारे पास बाउंडेड होगा, इज इट बाउंडेड। सो हमें क्या गिवन है? हमें अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि u इज बाउंडेड। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? इट इज सेइंग दैट v इज बाउंडेड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं देन क्लियरली u प्लस v इज आल्सो बाउंडेड, बिकॉज u प्लस v इज बाउंडेड विच एम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास f ऑफ z होगा वो भी बाउंडेड हो जाएगा, एंड इट इज गिवन दैट इट इज entire function. So this implies that f of z is constant. So yes, this option is also correct. Now what about option number 4? ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग देख लेते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व ऑप्शन नंबर डी एज वेल। ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि हमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर फंक्शन के बारे में बात करनी है। अच्छा, हमें ये फंक्शन कब मिल सकता है? लेट सपोज हमें f क्या गिवन था? f ऑफ z हमारे पास था u प्लस आयोटा v। अगर मैं मॉड ऑफ f लेता हूं तो मॉड f क्या हो जाता है? मॉड ऑफ f बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पर सपोज मॉड ऑफ f का स्क्वायर ले लिया, सो दिस बिकम्स अवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि हमें मॉड ऑफ f स्क्वायर हमें गिवन है। तो अगर मॉड ऑफ एफ स्क्वायर गिवन है और मुझे मालूम है कि u हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, v इज आल्सो बाउंडेड, सो इनके स्क्वायर का सम भी हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। क्लियरली इट इज गिवन दैट इट इज बाउंडेड, सो इफ इट इज बाउंडेड तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ एफ स्क्वायर इज बाउंडेड फंक्शन। कोई फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू k इक्वल ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो हमारे पास मॉड ऑफ एफ स्क्वायर है वो हमारे पास k से छोटा होगा, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास बाउंडेड है। एंड दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मैं मॉड f की वैल्यू निकालूं तो ये इक्वल लेस देन होगा हमारे पास मॉड k के, या फिर इस मॉड k को मैं कोई अदर वैल्यू मान लेता हूँ। लेट सपोज इट इज t, से दिस वैल्यू इज t, so what I can write that mod of f is equal or less than t, so this implies that mod of f is also bounded. If mod of f is bounded, which implies that f is bounded, and since f is bounded and it is given that f is entire, so which implies that f of z is constant function. So from here basically this function also valid, so option number 4 is also correct. So the correct option in this question is A, B, C and D are my all are my correct options. Okay, thank you.